हेलो स्टूडेंट, आज के नंबर थ्योरी की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो अगर ए और बी, लेट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स and n be a fixed integer, positive integers, then a and b are said to be congruent if n divides a minus b. तो अगर n a minus b को डिवाइड करा तो हम बोलेंगे a is congruous to b mod n, और ये इसका नोटेशन है a is congruous to b mod n. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज हम लिखें 10 is congruous to 2 mod 8, right? Because the difference of 10 and 2 is divisible by 8, so 10 is congruous to 2 mod 8, and minus 15 is congruous to, this is 5 modulo 10, right? Because the difference of minus 15 and minus 5, which is 20, and this is divisible by 10, so this is congruous to, minus 10 is congruous to 5 mod 10. So in number theory there is theorems which is called the division algorithms. Then according to division algorithm, if we have an integer a, let a be an integers, so this is a notation for the integer, set of integers, and let a be an integers and this n be a some positive integers. Let's suppose n be a positive numbers, and then there exists a number q and r, and there exists a number q and r such that a is equal to this qb plus r, where r is greater than equal to 0 and less than, sorry, this is n, qn plus r, and this is less than n. So that means, so from here we can write this a minus r is equal to q times of n, so this implies that, so this n divides a minus r, so we can write a is congruous to r modulo n. So if a is an integers and r is a number such that r lies between 0 to n, that is where r lies between, r is the x value 0, 1, 2 up to n minus 1. So any number a is congruous to the remainder when this number is divided by n. So there is some application of this congruence to find the remainder. For example, हेलो स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस के इस लेक्चर में हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये अगर इसका मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह के आता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 31 इज डिविजिबल बाय 11, तो हमें क्या करना है, 2 to the power 31 की वैल्यू जो निकालनी है, इसकी मॉडुलो 11 में इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 to the power 31 हमको निकालना है। तो हमको उसको अगर हम 2 की पावर 5 लें तो 2 की पावर 5 कितना आएगा, 2 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंस टू, which is 2 की power 5 is equal to 32, right? So this is 32, we can write 32 is congruous to minus 1 in modulo 11. So because the difference 32 and minus 1, the difference of these two number is divisible by 11. 32 minus 1 is 33, which is divisible by 11. So 32 is congruous to minus 1 modulo 11. So now we have to find 2 to the power 31, ठीक है? 2 की पावर 31 हमको निकालना है, तो 2 की पावर 31 की को हम लिख सकते हैं, so we can write this is 2 to the power 5 into 6 plus 1. We can write 31 is equal to 5 into 6, which is 30 plus 1, 31, so which is equal to 2 to the power 5 to the power 6 into 2, right? We can write 2 की पावर 31 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 6 into 2, and this is 2 to the power 5 is congruous to minus 1, so this is minus 1 to the power 6 into 2 and modulo 11.
So this value minus 1 to the power 6 is 1. So this is congruent to 2 modulo 11. ठीक है, तो 2 की पावर 31 हमारे पास क्या आ गया, 2 to the power 31 is congruent to 2 modulo 11. तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है a is congruent to b mod n, और अगर b की वैल्यू इससे n से कम है तो ये इसका रिमाइंडर होगा. ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज 2. क्लियर है सबको. नेक्स्ट देखिए आपका सेम इसी तरह का एग्जांपल हम ले रहे हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए. हमको रिमाइंडर निकालना 3 की पावर 24 का, जब हम इसको डिवाइड करें 77 से, तो हमको 3 की पावर 24 की वैल्यू निकालिए मॉडुलो 77 में. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम 77 के जो नियरेस्ट नंबर हम लाने की कोशिश करेंगे. 2 की पावर हमको 24 निकालना है. ठीक है, तो हमको पता है जो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू दिस इज 81. ठीक है, 9 इंटू 9 इज 81. सो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलो 77 में. अगर हमको इसको 70 mod 70 में इसके कॉन्ग्रुएंट निकालना है, तो हम 77, इसका मतलब क्या है, मॉडुलो 77 में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 77 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा. क्लियर है, अगर हम 77 से इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम्स पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा. तो देखिए 81 को हम लिख सकते हैं, तो अगर 77 से इसको डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 4. ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 77. क्लियर है, तो 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 इन मॉडुलो 7, क्योंकि अगर हम 81 और 4 का डिफरेंस निकाल तो 77 आएगा, और वो 77 से डिविजिबल है. सो 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 77. तो 3 to the power 4 को हम सीखते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 77. अब हमको 3 की पावर 24 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 to the power 24 को हम लिख सकते हैं विच इज 3 to the power 4 to the power 6. ठीक है, और 3 to the power 4 को हम लिख सकते हैं 4. नाउ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, सो दिस इज 4 to the power 6 इन मॉडुलो 77. राइट, अब हमको 4 to the power 6 की वैल्यू निकालनी है. नाउ 4 to the power 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 to the power 6 को हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4. दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर. राइट, सो दिस इज 16 इंटू 16, which is 16 into 16 into 16 in modulo 77, and this is congruent to, तो अगर 16 into 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 256. तो देखिए आपका ये हमारे पास क्या 16 into 16 into 16 लिख सकते हैं. 16 into 16 कितना आएगा, 256. Now this is the 256 into 16 in modulo 77. राइट, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, 3 की पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 256. अगर 256 को हम 77 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 25. ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, इंटू 16 इन मॉडुलो 77. ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 25 इंटू 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं. तो दिस इज 100 इंटू 4 इन मॉडुलो 77. ठीक है, अब 100 की वैल्यू मॉडुलो 77 में क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है मॉडुलो 77 में, यानी हम इसको डिवाइड करें 77 से, जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें 77 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी दिस इज 23. ठीक है, तो बिकॉज 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 इन मॉडुलो 77, तो हम इसको लिखते हैं इंटू 4 इन मॉडुलो 77. ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, नाउ दिस इज इक्वल टू 92 इन मॉडुलो 77. ठीक है, 92 आ गया. अब 92 अब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 77. इसको 77 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आएगा, नाउ द रिमाइंडर इज, so this is congruent to 15. ठीक है, इन मॉडुलो
77। इसको डिवाइड कीजिए तो हमारे कितना आएगा, 1 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा और फिर आपके पास कितना बचेगा, जैसे 77 प्लस 10 आपका 87, 87 और 5 3 की पावर 24 की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 77। सो द रिमाइंडर when 3 to the power 24 is divided by 15 divided by 77 is 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है टू फाइंड द रिमाइंडर 1,777 to the power 777 is divided by 16। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि 1,777 to the power 777 is divided by 16। तो इन्हें हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू मॉडुलो 16 में फाइंड करनी है। तो देखिए आपका 777 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो जो हमारे पास वो रिमाइंडर आएगा 9। तो हम इसको लिखते हैं दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 16। ठीक है, अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, सो नाउ द स्क्वायर ऑफ दिस, सो दिस इज 9 स्क्वायर इन मॉडुलो 16। ठीक है, देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं कॉन्ग्रुएंस की जो आपको याद रखनी है कि इफ A is congruent to B modulo n, then A to the power k is congruent to B to the power k modulo n, where k is some positive integer। ठीक है, उसमें हम किसी पावर को भी रेस कर सकते हैं बोथ साइड, तो कॉन्ग्रुएंट में वैल्यू सेम रहती है। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो नाउ दिस वैल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, सो दिस इज 81, दिस इज 81 इन मॉडुलो 16। ठीक है, अब 81 को अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 16 मॉडुलो में, तो 81 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 16 5 जो 80 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। सो वी कैन राइट दिस इज 1 इन मॉडुलो 16। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 16 से, जो रिमाइंडर आ जाए वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका 81 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। ठीक है, तो 777 टू का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है 777 की पावर 777। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको पता है कि स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 777 को हम इसको लिखें 777 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 388 प्लस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 776 प्लस 1 विच इज 777। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको निकालनी है इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, नाउ दिस इज इक्वल टू 777 का होल स्क्वायर की पावर 388 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 777 का होल स्क्वायर ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडुलो 16 में, तो जो इसकी वैल्यू आएगी नाउ वी कैन राइट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 388 इंटू 7 की पावर 1 इन मॉडुलो 16। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारा 1 की पावर 3881 आ गया। सो नाउ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 16। ठीक है, जो 7 की वैल्यू 16 से कम है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मॉडुलो 16 में, तो ये 7 आ गई, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज 7। तो आंसर आपके पास कितना आ गया, आंसर इज 7। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि हमको अगर यूनिट डिजिट फाइंड करनी है 3 की पावर 1000 में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो भी हमको नंबर दिया हुआ है उसको मॉडुलो 10 में वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो मॉडुलो 10 में इसकी हमको वैल्यू देखनी। देखिए 3 का स्क्वायर हमको पता है वो कितना होता है, 3 का स्क्वायर इज 9 होता है, और 9 को अगर हम मॉडुलो 10 में वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दिस इज -1 आएगी। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज -1 इन
मॉडुलो 10। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इज -1 इन मॉडुलो 10। हमको 3 की पावर 1000 की वैल्यू निकालनी है। 3 की पावर 1000 की जो वैल्यू निकालनी है, हमको पता 3 की पावर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को 2 इंटू 500 लिख सकते हैं। और जो 3 का स्क्वायर की जो वैल्यू है, नाउ दिस इज 3 स्क्वायर की पावर 500, राइट। एंड 3 स्क्वायर इज कॉन्वर्स टू -1, so we can write this as -1 to the power 500 in modulo 10. तो 1 -1 की पावर, this is a even number, so this is 1, so this is congruous to 1 in modulo 10। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 3 की पावर 1000 की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू 1 आ गई मॉडुलो 10 में, तो इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 1। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, सपोज हमें बनाना है कि लास्ट 2 डिजिट बतानी है 7 की पावर 100 की। देखो, जब भी हमको लास्ट डिजिट बतानी है तो हमको मॉडुलो 10 में वैल्यू देखनी है, और हमको लास्ट 2 डिजिट बतानी है तो यानी कि हमको उसकी मॉडुलो 100 में वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको मॉडुलो 100 में निकालनी है। तो हम इसकी वैल्यू, हमको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर इज 49 होता है। ठीक है, और अगर बोथ साइड इसको फिर अगेन हम स्क्वायर करें, 7 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंस टू 49 का स्क्वायर। तो देखो 49 का स्क्वायर अगर हम करें, इसको 49 इंटू 49 अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वो आएगी 1401। क्लियर है, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इसकी वैल्यू आपके पास इतनी है। अब हमको ये वैल्यू जो अगर हम मॉडुलो में निकालें, तो देखो 100 के अगर हम इसमें देखें, यानी हम इसको 100 से डिवाइड कर दो, वहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये 1400 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा 14 टाइम्स, और रिमाइंडर 1 आएगा, तो हम लिख सकते हैं दिस इज 1 इन मॉडुलो 100। ठीक है, इसकी मॉडुलो में वैल्यू निकालनी 100 में, तो इसको 100 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, सो दिस इज 1 इन मॉडुलो 100। अब हमको 7 की पावर 100 की वैल्यू निकालनी है। 7 की पावर 100 को हम लिख सकते हैं दिस इज 7 की पावर 4 इंटू 25, राइट। एंड 7 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1 है मॉडुलो 100 में, सो वी दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 की पावर 25 इन मॉडुलो 100। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1 इन मॉडुलो 100। तो इसका मतलब इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है 7 की पावर 100 की 1 का मतलब 0 हुआ, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई, द लास्ट 2 डिजिट इज 0 1। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ इसके एप्लीकेशन थे। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो फॉर्मेट थ्योरम्स की बात करेंगे और ऑयलर थ्योरम की बात करेंगे। थैंक यू।